So welcome dear friends once again in the physics lecture. Yesterday your major test is over and now we will start with our new topic which is nuclear. Okay, till now we have discussed much more about the atom, atomic structure. So we have studied the Bohr's model, everything, Rutherford's model, and everything, energy levels, what is the Rydberg's constant, what is the scattering alpha particles, and everything. And in that we have considered that nucleus is the central part. Nucleus is the central part. So the whole mass of the atom is supposed to be concentrated at the nucleus. So in this topic we will study the properties of the nucleus. Secondly, the constituents of the nucleus. So of which constituents the nucleus is made up of. So that is the thing. So let's start with the topic. So at first we have to understand one new unit, one new unit in which we will express the nuclear mass. So unit of expressing nuclear mass. So we start with unit of expressing nuclear mass. Nuclear mass means mass of the constituent nucleus. Mass of proton, mass of neutron, likewise, whatever it is there. And it is called as 1 AMU, atomic mass unit. It will be atomic mass unit. So generally, it can be referred to be AMU. So the relation is 1 AMU is equal to 1.66 into 10 raised to 27 minus 27 it will be, of course, because nuclear mass is okay, that will not be plus. So that will be the atomic mass unit. Sometimes it is referred as U also, 1 U. So actually it is related with carbon, carbon isotope and all. So but that is not the for our syllabus, means for our studies and all. In your chemistry already you will study that, or you would have studied that, I may say better. So that we are not at all interested in that. So likewise right now we are interested in the atomic mass unit, that is the mass of nucleons, constituents of the nucleus. So what are the constituents of the nucleus, that we will now study. So secondly we will go for constituents of nucleus. You are knowing that this is very basic, so I will not waste my time much more in that. So if I go for the constituents of the nucleus, nucleus is made up of protons and neutrons. So combinedly nucleus will be having protons and neutrons. Okay. So there was an experiment carried by Rutherford. So Rutherford's experiment, which was carried, in that it was assumed that for the nucleus there is a relation. This is a new relation you have to note down, of course. N is equal to A minus Z. So this is a very important formula we got from the Rutherford's experiment. So what is that formula? What is the formula we are looking for? So when N will be your number of nucleons. Okay. In the sense, nucleons, but here A is there, here Z is there. So instead of nucleons, may I change it number of neutrons, because proton number we are getting number of neutrons. So A will be mass number and Z will be atomic number. So
what is mean by the mass number and what is mean by the atomic number, that also we will start for study. So atomic number is the number of protons and electrons or electrons which is same. जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होता है. So whatever is the number of protons, the same number of electrons are there, but the mass of proton is much more heavier. The proton is much more heavier than that of the electron. So mass of proton can be taken as bigger, okay, than that of the electron. So wait for a while, I will clean it and we'll go for definition of mass number and atomic number. You are knowing that from your 9th class you have studied, so I will not waste my on your time also much more in this consideration. So actually what is that you have to keep in mind. Number one is number of protons is equal to number of electrons. So combinedly atomic number Z will be number of protons or electrons. इसको कंबाइन नहीं करें, प्रोटॉन नंबर ले लो नहीं तो इलेक्ट्रॉन नंबर ले लो, और ये इंपॉर्टेंट, और आपका मास नंबर जो आएगा ए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. सो इसको नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स व्हिच आर कॉन्स्टिट्यूटिंग द न्यूक्लियस ऐसा भी हम बोल सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स व्हिच आर कॉन्स्टिट्यूटिंग द न्यूक्लियस. तो यहाँ से अगर प्रोटॉन का नंबर निकालना है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का नंबर निकालना है तो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स माइनस प्रोटॉन्स, we will get the number of neutrons. This is the basic thing which we want to study. Now we'll go for the next point. तो next point में क्या है बेटा, तो next point में अपन को थोड़ा सा पढ़ना है, इसमें से अपन को size of the nucleus ये अपन को पढ़ना है. So we have to study the size of the nucleus. So next article we will start with the size of the nucleus. So you have to note it down. It's very and very important. If you are not knowing this, then you may face many problems. Okay. So next point we will go for the size of nucleus. So size of nucleus will be expressed in the nuclear radius r, constant r naught, and mass number A. So very important relation which will be always helpful for you for your each and every problem solving, that is r is always proportional to, okay, actually r is always proportional to a to the power 1. R is always proportional to a to the power 1. So इसको अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगाना पड़ेगा. तो r will be always equal to r naught a to the power 1. So cube of the radius is proportional to mass. Okay, ये आपको ध्यान में रखना. तो वह r naught is a constant. r naught का वैल्यू था 1.2 × 10⁻⁻15. वह ये आपको लिखना पड़ेगा, नोट डाउन करना पड़ेगा. r naught is equal to constant और उसका वैल्यू बनता है 1.2 × 10⁻15 मीटर. अब ये 15 का जो पॉइंट है, whatever is the 15 10⁻15, that unit is called as nuclear distance. So nuclear distances ये बाद में भी बताने जाऊंगा मैं. It is measured in the power of 10⁻⁻15 मीटर. उसको ही बोलते हैं फर्मी और FM, फर्मी बोलते हैं. सो इस टॉपिक में हम पूरा जो डिस्टेंसेस वगैरह ले लेंगे, दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ 10⁻⁻15. और एटॉमिक साइज कितना होता है? एटॉमिक साइज होता है, एटॉमिक के लिए हम लेते हैं 10⁻10.
तो कितना डिफरेंस है, 10⁻⁵ का डिफरेंस है, मतलब 0.000000001 इतना डिफरेंस। तो न्यूक्लियस ऐसा लिखेंगे तो एटॉमिक साइज इतना है। तो एटम हैज अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस, ये यहाँ से प्रूव होता है। ये ऑलरेडी हमने एटम्स में ये इसको हम प्रूव किए। सो आई विल सजेस्ट यू टू गो बैक एंड टू नोट डाउन दिस कंसेप्ट। ओके, अभी इसके बाद क्या है, तो ये हो गया। तो इसके बाद इसको ही लेके हम प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। तो किसी भी न्यूक्लियस का मास नंबर अगर आपको मालूम है तो न्यूक्लियर रेडियस यू कैन फाइंड आउट द न्यूक्लियर रेडियस। तो मैंने इसके लिए एक इम्पोर्टेंट फॉर्मुलेशन के तौर पे मैंने आपको एक निकाल के रखा है, मैं आपको देता हूँ। वेट फॉर अ व्हाइल, ठीक है, वो बाद में करते हैं। अभी वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस में, ओके, न्यूक्लियर वॉल्यूम, ओके, एकदम सिंपल, न्यूक्लियर वॉल्यूम। ये चीजें क्या है, एकदम छोटी छोटी है, उसको ज्यादा उसके ऊपर एम्फोसाइज नहीं करो तो भी चलता है, आपको मालूम होना चाहिए। मालूम नहीं है तो प्रॉब्लम है। तो वॉल्यूम, वी आर कंसीडरिंग न्यूक्लियस टू बी स्फेरिकल, वी आर कंसीडरिंग इट, ओके। स्पेसिफिक शेप थोड़ा सा उसमें नहीं लेते हैं, लेकिन फॉर द कैलकुलेशंस, फॉर कैलकुलेशंस लेट्स टेक द शेप टू बी स्फेरिकल। तो स्फेरिकल किया, स्फेरिकल के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या चलेगा अपना, 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसमें अगर मैंने डाला तो मेरे को मिलेगा 4/3 पाई आर की जगह r0 8 टू द पावर 1/3 ब्रैकेट क्यूब। तो इसको मैंने स्प्लिट किया तो बनेगा 4/3 पाई r0 टू द पावर, सॉरी, r0 क्यूब into a. So this will become my very important formula. So this is the nuclear volume. इसमें अगर मैंने इसका वैल्यू पुट फॉरवर्ड किया, आउट ऑफ दैट 4/3 पाई एंड r0 दे आर कांस्टेंट। तो मैं वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिजल्ट भी बोल सकता हूँ, न्यूक्लियर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियर वॉल्यूम depends upon mass। अगर वॉल्यूम लिया तो वॉल्यूम न्यूक्लियस का क्या करेगा, मास नंबर पे डिपेंड करेगा। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ओके, यहाँ पे हमने न्यूक्लियर डेंसिटी भी पढ़ना होगा, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो अभी हम जाते हैं न्यूक्लियर डेंसिटी पढ़ने के लिए। सो आई सजेस्ट यू टू नोट दिस डाउन। ये टॉपिक है पूरा का पूरा थियोरेटिकल है, उसमें प्रॉब्लम भी बहुत है, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें आपको नोट डाउन करते जाना है, बाकी कुछ नहीं। जितना जितना मैं बताते जाता हूँ उतना उतना आपको नोट करते जाना है। तो इसके ऊपर डिपेंडिंग ऑन दिस मेनी प्रॉब्लम्स विल कम, सो यू हैव टू सॉल्व दोस प्रॉब्लम्स आल्सो, दे आर वेरी इजी। सो आई विल सजेस्ट यू टू गो थ्रू देम। Just wait, let me clear the board and then we'll go for next point, that is our nuclear density. तो आपने लिख के रखा तो भी चलेगा, ओके, न्यूक्लियर डेंसिटी। तो आगे के लिए जाएंगे हम न्यूक्लियर डेंसिटी। थोड़ा न्यूक्लियर डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, सो न्यूक्लियर डेंसिटी अगर आपको पढ़ना है तो हम जाते हैं अभी न्यूक्लियर डेंसिटी। सपोज इसको मैं रो बोलता हूँ, तो रो, आई नो दैट रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। सो अगर मैंने मास अपॉन वॉल्यूम का ट्रीट किया है ना, तो मास तो आपको मालूम है, मास कितना लिया है, एम यू लेने का, वो तो 1 यू लिया है ना, वो लेने का, और वॉल्यूम अपना है 4/3। ओके, तो अगर मैंने शॉर्ट में अगर इसको ए अपॉन 4/3 पाई r0 क्यूब इंटू ए किया तो ये ए निकल जाए। तो एक्चुअली in practice we take m to be 1.66 into 10⁻⁻⁻⁴,
27 kg, आर नॉट लेते हैं 1.2 इंटू 10⁻⁻15, है ना। और ये कैलकुलेशन किया तो वी आर गेटिंग अ फिक्स वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर डेंसिटी, है ना, 2.29 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। सो ये आता है 2.29 इंटू 10⁻27 है ना, 7 किलोग्राम पर मीटर। So nuclear density is that quantity which is independent of mass number. So ये आपको ध्यान में रखना है, it's very important. Nuclear density, आज का पूरा जो अपना सेशन ये सब चीजें पढ़ाने में एक दो प्रॉब्लम में ले लूंगा, मेरे पास है एक दो प्रॉब्लम ले लूंगा, लेकिन मोस्टली फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस गेट द कंसेप्ट व्हाट इट इज। ओके, न्यूक्लियर डेंसिटी इज independent of mass. It has a correct value which is coming for that. तो डेंसिटी जो है मास अपॉन वॉल्यूम, तो अगर मास चेंज हो गया तो उसके मुताबिक उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, न्यूक्लियर रेडियस चेंज करेगा। आर नॉट कांस्टेंट है लेकिन आर अपना कांस्टेंट नहीं, तो अकॉर्डिंगली रेडियस चेंज हो जाएगा। रेडियस चेंज करने के बाद मतलब ऑटोमेटिकली हम नहीं करेंगे, तो ऑटोमेटिकली उसके लिए जितना मास है उसके मुताबिक वो डालेगा। सो साइज, न्यूक्लियर साइज और न्यूक्लियर शेप इज नॉट फिक्स्ड, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग, that's why we are speaking about the shape. It is not perfectly spherical or it is not fixed according to the mass number, whatever is the mass, depending means mass of the constituents, whether it is proton, whether it is neutron, depending on that the mass, if it will change, depending on that the volume will change accordingly and this quantity will remain the same. So that is the funda of the nuclear density. तो न्यूक्लियर डेंसिटी का कुछ प्रॉपर्टीज है वो हम अभी देखते हैं, तो उनको भी आप नोट डाउन करके लें। सो नाउ नेक्स्ट आर्टिकल विल बी द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर डेंसिटी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको उसको नोट डाउन करना पड़ेगा। कभी कभी वो पूछे भी जाते हैं, नहीं तो किसी भी प्रॉब्लम में वो प्रॉपर्टी का यूज करके आपको थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ आस्किंग द थ्योरेटिकल क्वेश्चंस depending on this properties of say nuclear density, so you must be ready with that. So we'll start with the properties of nuclear density. Okay, so wait for a while, let me clear the board, let's go for the properties of nuclear density. Some properties of nuclear density. तो पहला प्रॉपर्टी आएगा आपका नंबर 1, ओके, जो अभी हमने बताया न्यूक्लियर डेंसिटी डजंट डिपेंड ऑन क्या बोलता था ए, दैट इज द मास। न्यूक्लियर डेंसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन ए। इसका मतलब क्या है, मतलब ये लेना है आपको, ऐसा नहीं है, मतलब निकालना है इसमें से, दैट इज ऑल द न्यूक्लियाई possess nearly बोला मैं, सेम न्यूक्लियर डेंसिटी। कौन सा भी ये लिया न्यूक्लियस लिया तो नियरली सेम न्यूक्लियर डेंसिटी आएगा, उसमें ज्यादा बदलाव नहीं। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस फर्स्ट प्रॉपर्टी। आई विल सजेस्ट यू टू नोट दिस डाउन, फर्स्ट प्रॉपर्टी, ओके, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके पास ये होना चाहिए। सेकंड प्रॉपर्टी है आपका, तो सेकंड मैं बोलता हूँ अभी, इट्स अबाउट वैल्यू ऑफ रो। वैल्यू ऑफ रो अभी हमने बताया कितना, 2.29 × 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो 1 मीटर क्यूब में इतना किलोग्राम, तो इट इज अ वेरी लार्ज वैल्यू, तो ये आपको ध्यान में रखना है, जस्ट ध्यान में रखो इसको। रो हैज एक्सट्रीमली लार्ज वैल्यू, ये बाकी इसमें कुछ देखना नहीं है,
ये आपको खाली ध्यान रखना। रो हैज एक्सट्रीमली लार्ज वैल्यू, ये भी आपको ध्यान में रखना। पहला है न्यूक्लियर डेंसिटी doesn't depend on A, that is the mass number. Okay, that is the all nuclei they possess the same nuclear density. दूसरा है रो हैज, रो मींस न्यूक्लियर डेंसिटी हैज एक्सट्रीमली लार्ज वैल्यू। और तीसरा आएगा आपका नंबर 3, वो देखते हैं अभी, इट इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियर डेंसिटी is not uniform throughout the इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसको पहले हम पढ़ लेंगे, गो फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो इसका मीनिंग है, द मीनिंग ऑफ दिस इज, अगर मैं किसी भी न्यूक्लियस को ले लूं, इफ आई टेक एनी न्यूक्लियस, देन what I get, let me explain. Suppose मैंने एक न्यूक्लियस, सपोज एक शेप किया, तो यहाँ पे n नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड p इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो जो कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, जो मास डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सपोज न्यूक्लियस में, अगर मैंने इसको इक्वली ऐसा डिस्ट्रीब्यूट किया है, सो दैट इज नॉट वैलिड एक्चुअली इन प्रैक्टिस फॉर द न्यूक्लियस। मतलब ऐसे नहीं होगा कि ऐसा ही मास है, कहीं पे भी ऐसा भी मास डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। यहाँ पे ज्यादा मास है, यहाँ पे थोड़ा कम है, यहाँ पे ज्यादा है, बहुत है। मतलब the exact position of protons and neutrons, exact position of proton and neutron, we cannot confirm about that. So we are not confirming about the exact value of, no, sorry, exact distribution of protons and neutrons. I hope you have understood. जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का, उसको हम एग्जैक्टली सेम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं ले सकते। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने मैक्रो में चला गया, किसी भी मटेरियल का एक बॉल तैयार किया, आयरन का बॉल है, तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा, आयरन के बॉल के लिए अगर मैं ऐसा उसको डिस्ट्रीब्यूट करूँ, डिस्ट्रीब्यूट मतलब एक मास डेंसिटी ले लूँ उसका, तो डेंसिटी यूनिफॉर्म होता है ना। तो यूनिफॉर्म डेंसिटी का मतलब क्या होगा, जो मैंने बॉल कंसीडर किया है, किसी भी पॉइंट पे मैं अगर मास रिकॉर्ड करूं, सो मास पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज इंपॉर्टेंट। सो दैट इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। किसी यूनिट वॉल्यूम के लिए कितना मास होना चाहिए, दैट क्वांटिटी विल बी केप्ट कांस्टेंट देयर। लेकिन ऐसा न्यूक्लियस में होता नहीं, इनसाइड द न्यूक्लियस, तो इट इज अ वेरी माइक्रो थिंग। तो अगर न्यूक्लियर थिंग में आप ऐसा करने जाओगे, देन यू विल नॉट एट ऑल गेट दिस थिंग्स। सो दिस इज टू बी अंडरस्टूड एंड kept in mind. Okay. ओके, अभी दो प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं डिपेंडिंग ऑन द न्यूक्लियर रेडियस। ओके, तो आई सजेस्ट यू नोट डाउन द प्रॉब्लम। दो ही है प्रॉब्लम, इसलिए मैंने पीडीएफ नहीं बनाया, मैं आपको लिख के देता हूँ। द न्यूक्लियर रेडियस ऑफ 8O16, प्रॉब्लम नंबर 1, द न्यूक्लियर रेडियस ऑफ 8O16, ये क्या है बता दो आप, पहले लिख के, is 3 into 10 raised to minus 15 meter, is 3 into 10 raised to minus 15 meter. What is the nuclear radius of 82 Pb205? What is the nuclear radius of 82 Pb205? तो लिखने के लिए हम कैसे लिखते हैं, किसी भी न्यूक्लियस को अगर दिखाना है तो मास नंबर, एटॉमिक नंबर दोनों भी दिखा है। सपोज ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, ये ड्यूटेरॉन का क्या बोलते उसको, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम ना बोलते उसको, क्लोरीन का न्यूक्लियस है। अलग अलग मटेरियल के न्यूक्लियस जो है, अलग अलग एलिमेंट्स के जो न्यूक्लियस है, उनको दिखाने के लिए हमारा एक पैटर्न होता है, Z, X एंड A। तो नीचे क्या लिखने का, उसका
एटॉमिक नंबर, ऊपर क्या लिखेगा उसका मास नंबर, ऊपर आएगा, ऊपर का क्वांटिटी होगा मास नंबर, नीचे का क्वांटिटी होगा उसका एटॉमिक नंबर। तो आई विल सजेस्ट यू टू नोट दिस डाउन। तो अपने के लिए अभी अपने के लिए अपन के लिए क्या बनेगा 8O16, 8O16 मतलब ये एलिमेंट है, उसके लिए A कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा एंड Z कितना हो जाएगा, Z हो जाएगा 8। और PB के लिए, PB जो दिया है अपन को, PB के लिए 82 PB 205, इसका मतलब आएगा यहाँ पे A आएगा 205 एंड Z आएगा 82। सो आई सजेस्ट यू टू नोट दिस डाउन। अभी अपन को क्या करना है, न्यूक्लियर रेडियस उसका निकाल, है ना, एक का दिया है दूसरे का देना है। ओके, तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, R is equal to R naught a to the power 1/3. It means that R is proportional to a to the power 1। बन गया। तो R1 अपॉन R2 निकालते हैं, तो इसको हम बोलते हैं 1, ये सब को बोलते हैं 1 और इनको बोलते हैं 2। तो क्या बन जाएगा बेटा, रिलेशन एकदम सिंपल बन जाएगा, R1 अपॉन R2 will be equal to A1 upon A2 to the power 1। मतलब उसका क्यूब रूट निकालना है। तो यहाँ पे कर लेते हैं, R1 कितना दिया है, तो पहले R2 के लिए निकालते हैं, R2 कितना आएगा, तो R2 इधर चला गया, फिर क्या बन जाएगा इक्वेशन, R2 इज इक्वल टू R1 वैसे ही रहेगा इंटू इसको उल्टा करने का, A2 अपॉन A1 टू द पावर 1। R2 कितना हो जाएगा, R1 इंटू A2 अपॉन A1 टू द पावर 1/3। फिर R2 निकालते हैं, तो R2 के लिए क्या चलेगा, R1 कितना दिया है 3 इंटू 10⁻⁻50। अभी A2 कितना है 205, A1 कितना है 60 टू द पावर 1। अभी इसमें ये क्यूब रूट अगर हमने निकाला तो ये निकालना पड़ेगा आपको, 2 टू 4 टू 8, तो ये नहीं हो सकता, 16 का क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, 16 से इसको डिवाइड करो, 16 1 16, 16 3 है ना, सो 13 आएगा। तो R2 3 इंटू 10⁻⁻15 अप्रोक्सीमेटली 13 का क्यूब रूट आएगा, तो 2 पॉइंट समथिंग में आएगा। तो इसको कैलकुलेट किया तो मैंने आंसर निकाला है 7.02, क्या आता है 7 पॉइंट, मतलब ये 2 समथिंग आएगा। 2 का क्यूब कितना है 8 है, 3 का क्यूब 27, 8 और 27 के बीच में, मतलब 2 और 3 के बीच में आएगा, 2.5 समथिंग आ सकता है ना। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करा मैंने 3 टू 6, तो थोड़ा सा 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो अगर हमने किया तो 7.02 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, तो आंसर कितना आएगा आपका बेटा, आंसर आएगा आपका R2 विल बी 7.02 फर्मी लिखी, -50 को हमने कन्वर्ट करना है फर्मी। So I will suggest you to note this down because it's very important formula. You have to go with this formula and solve the thing. Okay. तो इसको लेके आप अलग-अलग प्रॉब्लम्स बना सकते हैं. How to calculate the nuclear radius of another. यहाँ पे फर्मी लिखा है, यहाँ पे मीटर दिया है, तो आपने मीटर में भी लिखा तो भी आपका आंसर गलत नहीं है, आपका आंसर भी वहाँ पे सही पकड़ा जाएगा. There is no problem. So now we'll go for the problem number 2. अभी देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 में क्या पूछा है। So I suggest you to go back and gently note down whatever I have given you. तो आपके लिए वो अच्छा चलेगा. So you will be forever having the solved problem in your notebook, and at any time if you are worried about the answer and all, then you will be able to get the answer from the
सेड प्रॉब्लम। ओके, इसको मत भूलो, ठीक से करो इसको। जस्ट लेट मी क्लियर द बोर्ड एंड दूसरा प्रॉब्लम अभी हम देखते हैं। इसके ऊपर 2 ही प्रॉब्लम सॉल्व करके देने वाला हूँ, इसीलिए मैं आपको पीडीएफ वगैरह कुछ नहीं दिया। हाँ, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होता तो मैं पीडीएफ फोटो स्नैप करके आपको भेज देता, लेकिन 2 ही प्रॉब्लम है, इसके लिए देयर इज नो प्रॉब्लम, we will go on doing the same. Okay, find the density of nuclear mass in 92U238. अभी प्रॉब्लम नंबर 2 के लिए find the density of nuclear mass. Find the density of nuclear mass in 92U238 nucleus. In 92 uranium 238 nucleus. Find the density of nuclear mass in 92U238 nucleus. R naught is 1.5 Fermi. क्या दिया आपको? R naught 1.5 Fermi और दिया है, और क्या दिया है? मास। मास ऑफ ईच न्यूक्लियस इज 1.6 into 10 minus 20. मास ऑफ ईच न्यूक्लियस is equal to 1.6766 ना, 1.6 into 10 raised to minus 27 और 70 minus 27 मैंने कितना दिया है आपको? हाँ, minus 27 दिया है ना आपको? हाँ, minus 27, ठीक, मतलब ये U का वैल्यू है, U। ओके, अभी आपको न्यूक्लियर डेंसिटी उसका निकालना। ओके, तो न्यूक्लियर डेंसिटी कैसे लिखेंगे? रो इज इक्वल, एक्चुअली न्यूक्लियर डेंसिटी कितना आना चाहिए, जितना मैंने दिया है 2.29 वगैरह वो दिया था ना, वैसे ही उतना ही उसके लेवल में आएगा, थोड़ा सा वैल्यू में चेंज हो जाएगा। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास का वैल्यू मैंने लिखा है, मास ऑफ ईच न्यूक्लियस, तो यहाँ पे वही लिखेंगे, कितना लिखेंगे? 1.6 into 10 raised to minus 27 divided by 4 by 3 into pi 22 by 7 करते हैं into r, r नॉट into करने का आपको, तो r नॉट क्यूब मालूम है ना आपको, r is equal to r नॉट into 8/1/3, इसका क्यूब अगर मैंने किया तो इसका भी क्यूब हो जाएगा, ये बन जाएगा r नॉट क्यूब a, समझ गए? इसको लेके हम क्या करेंगे, r नॉट 1.2 into 10 raised to कितना हो गया था, minus 70 दिया था ना r का वैल्यू मैंने, r का minus 50 दिया, minus 50 ब्रैकेट क्यूब into a कितना है 238। so if you will go for calculating this, then last thing you will get the value, कितना आता है 1.18 into 10 raised to 70, ये आता है 1.18 into 10 raised to 70 किलोग्राम पर मीटर। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा अबाउट द न्यूक्लियर डेंसिटी। सो आई सजेस्ट यू टू नोट दिस डाउन। ओके, इसको नोट डाउन करो, बाद में हम आगे के लिए जाते हैं। इसके आगे हम जाते हैं, अभी अगला टॉपिक, अगला पॉइंट है वो अभी थोड़ा सा चेंज मतलब इसके आगे थोड़ा सा अलग टाइप का हम सीखेंगे, जो हमने अपने 10th में 9th में शायद सीखा है। सो आई सजेस्ट यू to concentrate towards that point also. Just let me rub the board, clean the board, and let's go for a different concept. It's already known to you. You are not unknown of that. That is isobars, isotopes, isobars and isotopes. Okay, वो करेंगे 2 मिनट के लिए। clear the board हो गया अभी, isotopes, isobars and isotopes। ओके, तो यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन वाली बात नहीं, there is not a single thing having any confusion about anything। तो जस्ट आपको ये नोट डाउन करना है। आपको मैं दे दूंगा काम, आपको भी ढूंढना है, मैं 2-3 दे दूंगा, आपको उसमें से ज्यादा पेयर ढूंढना होगा।
तो बोर्ड के लिए आपको लिख के दो, सब्जेक्टिव के लिए कभी कभी इन लोगों का पेयर, उसका मैच दो कॉलम वगैरह आपको आ सकता है अगर एमसीक्यू वगैरह पूछा, क्योंकि सब्जेक्टिव को पिछले साल से उन्होंने एमसीक्यू चालू किया। तो अगर एमसीक्यू आपको करना है तो उसमें इन लोगों का there is a very great contribution of isotopes, isobars and isotopes. So पहले लेते हैं isotopes, ठीक से लिख लो एक बार में ही अपने नोटबुक में इसको लिख के। आइसोटोप, आइसोटोप तो आपको मालूम, तो डेफिनेशन करने के लिए लिखने के लिए मेरे को तो लिखना पड़ेगा, तो मैं लिखते जाता हूँ, आप उसको नोट डाउन कर दीजिए। आइसोटोप क्या होता है? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट having same atoms of the same element having same atomic number but different mass. मतलब ये एक ऐसा ही बोल, नीचे वाला पार्ट सेम रहेगा, ऊपर वाला अलग हो जाएगा और बीच वाला भी सेम हो जाएगा। Z X A, Z सेम रहेगा, X सेम रहेगा, A बदलेगा। ध्यान में रखने के लिए ऐसा रखना। एग्जाम्पल लिखना हो तो एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, तो डेफिनेशन भी लिख के लो, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट having same atomic number but different mass number। तो ध्यान में रखने के लिए इसके ही बाजू में सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर, तो Z सेम, तो इसको यहाँ पे Z लिख के रखना, सेम एटॉमिक नंबर यहाँ पे Z लिख के रखो, डिफरेंट मास नंबर यहाँ पे A। तो ध्यान में रखने के लिए आइसोटोप्स बोले तो सेम Z सेम X मतलब बीच का एलिमेंट, डिफरेंट A, ये आपको ध्यान में रखना। एवीएम टेक्निक ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक, तो ये आपको बाय हार्ट करना, बाय हार्ट मतलब ध्यान में रखना। सेम Z सेम X डिफरेंट A, सेम Z सेम X डिफरेंट, Z सेम X सेम डिफरेंट A, Z सेम X सेम A डिफरेंट, है ना? हो, इसका एग्जाम्पल पॉपुलर लेते हैं। पहला आएगा 1H1, तो हाइड्रोजन, ये पहला हो गया वन ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। इसको क्या बोलते हैं? इसको हाइड्रोजन ही बोलते हैं, बेसिक है, इसलिए उसको बोलते समय हम बोलते हैं इसको हाइड्रोजन। दूसरा है 1H2, ये सबको मालूम है, ज्यादा मैं इसमें टाइम आपका खराब नहीं करूँगा। ये है 1H2, ओके। इसका नाम है ड्यूटेरियम, है ना? ड्यूटेरियम बोलते हैं ना उसको, हाँ, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम। ये हाइड्रोजन हुआ, ये ड्यूटेरियम हुआ। और 1H3 मतलब वो है तो होने के लिए हाइड्रोजन ही है, लेकिन एक का मास 1, दूसरे का डबल है, मास नंबर 2 है, तीसरे का 3 है, तो ये इसको बोलते हैं ट्रिटियम। तो इसको बोलते हैं आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। H आइसोटोप्स भी बोलते हैं और उनको बोलते हैं आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। ऐसे निकालने के लिए बहुत सारे होते हैं, आपको उसका फिक्र करने का जरूरत नहीं। हाइड्रोजन के साथ इसके साथ क्लोरीन भी होता है ना, क्लोरीन का कितना 35-37 होता है ना, हाँ, क्लोरीन का होता है। तो क्लोरीन को कितना आता है? तो अगर मैंने क्लोरीन का लिया तो इसको मैं हटा देता हूँ। सो ये हाइड्रोजन का हो गया, ये
ये वेरी इंपॉर्टेंट है, VIMP, इसको VIMP करके रखो। एग्जाम में बहुत टाइम आपको इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर क्लोरीन लिया तो क्लोरीन को कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। एक आता है 17Cl35 और दूसरा आता है 17Cl37, लेकिन इसको कुछ अलग नाम है, आइसोटोप ऑफ क्लोरीन। कार्बन के भी होते हैं आइसोटोप, तो आप बहुत सारे आइसोटोप्स ढूंढ सकते हैं पीरियोडिक टेबल में। आपको जो मटेरियल मिलेंगे, एलिमेंट्स मिलेंगे, उनके हर एक के खुद के आइसोटोप्स होते हैं। ये एक्चुअली आइसोटोप कैसे ढूंढेंगे, तो क्या क्या हो गया, जो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में, एटॉमिक फिजिक्स में, उस एक्सपेरिमेंट में किसी को हाइड्रोजन मिला, उसका मास नंबर तो एटॉमिक नंबर तो ठीक था, 1 मिल गया, लेकिन वो उसका वेट है ना, एटॉमिक मास मतलब क्या है ना, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है ना, एटॉमिक मास मतलब मास नंबर, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसमें जो न्यूट्रॉन होता है अंदर, तो आइसोटोप में क्या होता है, दो अगर आइसोटोप लिया तो यहाँ पे ये लाइटेस्ट हो जाएगा, लाइटर, ये just slight heavier and this is more heavy, so this will be heavy isotope, this will be lighter, this will be more lighter, so depending on that A, अगर A जिसका ज्यादा है, A जिसका ज्यादा उसका वो आइसोटोप हेवी, A जिसका कम वो आइसोटोप लाइट, ये आपको मानना चाहिए। मतलब इसमें ये इन तीनों में अगर हेवी न्यूक्लियस, इन तीनों में बोला है, हेवी में, हेवी ऐसा नहीं, इन तीनों में अगर न्यूक्लियस किसका हेवी होगा तो ये होगा ट्रिटियम, उससे कम होगा ड्यूटेरियम, और एकदम कम होगा आपके हाइड्रोजन। क्लोरीन में भी सेम, इस C30 से Cl37 का ज्यादा होगा, वाई वेराज फॉर Cl35 that will be having less value. So I hope you have understood that. I will suggest you to note this down. अभी हम आगे जाते हैं, ये हमने सीखा है आइसोटोप्स। इसके बाद में जाते हैं आइसोबार्स। आइसोबार कुछ नहीं, इसका उल्टा करना। यहाँ पे हमने Z सेम लिखा था, A डिफरेंट लिखा, तो अगर मैंने Z को डिफरेंट किया, A को सेम किया, तो भी क्या हो जाएगा, डेफिनेशन में चेंज हो जाएगा। तो डेफिनेशन में बेटा क्या चेंज हो जाएगा, तो अभी तक हम लिखते थे एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, लेकिन अभी अगर मैंने Z को चेंज किया, तो बेटा अगर Z चेंज किया मतलब मैंने एटॉमिक नंबर चेंज किया, एटॉमिक नंबर चेंज किया इसका मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो गया। तो बेटा अगर किसी भी एटम के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चेंज हो जाते हैं तो वो एलिमेंट बदल जाएगा ना, तो एलिमेंट सेम नहीं रहेंगे। तो स्टार्ट करते समय अपन को स्टार्ट करना है एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट, ये इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आपको एक्स भी डिफरेंट मिलेगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है, एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम क्या, सेम मास नंबर but different atom. Okay, so let's go for defining the second definition, that is isobar. एक मिनट, ये भी पूरा ढीला, सेकंड में जाते हैं आइसोबार, ये पूरा ढीला, ठीक है, जस्ट वेट, इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ। ठीक, तो क्या लिखेंगे, एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन विद एटम ऑफ डिफरेंट। सेकंड आपका बन जाएगा आइसोबार्स। तो आइसोबार्स में क्या लिखोगे बेटा, एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स, ये इंपॉर्टेंट, डिफरेंट एलिमेंट्स having same mass number
बट डिफरेंट, ऑफ कोर्स डिफरेंट एटॉमिक नंबर तो होगा ही, एटॉमिक नंबर। तो ये थोड़ा सा पजल जैसा किया, मतलब एलिमेंट तो मिलते जाएंगे, उसमें ऐसा एक कैरेक्टरिस्टिक, मतलब पजल ऐसा ये ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें भी बहुत कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, इसका कुछ साइंस में यूज होता होगा, न्यूक्लियर फिजिक्स में यूज करते होंगे, इसलिए इनको ढूंढ के निकाला, लेकिन इसका यूज बहुत है, तो हम पजल के जैसा लिख सकते हैं। अभी हाँ, अभी हमने क्या किया, सेम मास, तो अभी क्या मास नंबर, मतलब ए से डिफरेंट एटॉमिक नंबर, जेड डिफरेंट और डिफरेंट, तो एक्स का डिफरेंट। तो आइसोबार्स के लिए कैसे लिखेंगे हम, जैसे मैंने आपको बताया था, तो आइसोबार के लिए आपको नोट डाउन करके लेना होगा। आइसोटोप्स के लिए, आइसोटोप्स के लिए क्या दिया था, जेड सेम, एक्स सेम, डिफरेंट ए। तो यहाँ पे ए सेम, ए सेम, जेड डिफरेंट एंड एक्स, ये ऐसा आपको नोट डाउन करके करके रखना। ए सेम हो जाएगा, जेड डिफरेंट हो जाएगा और एक्स भी उनका डिफरेंट हो जाएगा। सो दिस विल बी कॉल्ड एज आइसोबार्स। तो अभी हम चाहते हैं आइसोबार्स क्या है, तो पहले सी और एसी का लेते हैं, 32 76 30 34 76, 32 CE 76 and 34 CE 76। तो अगर आपने यहाँ पे ठीक से उनको ऑब्जर्व किया, तो दोनों का भी ए सेम, हाँ, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है ये एसी है, एसी है, एसई है, उनका नाम वगैरह आप ढूंढ के लो पीरियोडिक टेबल से, सेलेनियम वगैरह कुछ तो हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 32 34 डिफरेंट, तो जेड डिफरेंट हो गया, एक्स ये सी है, ये एस सी है, ऑफ कोर्स जेड डिफरेंट है, मतलब एक्स डिफरेंट ही हो जाए, तो आपको करने का जरूरत नहीं। और ये मानो तो आपका ए दोनों का सेम 76 76। सो दिस इज द वन ऑफ द पेयर। सेकेंड पेयर मैंने नोट डाउन किया है, आर्गॉन और कैल्शियम, 18 AR 40 और 20 CA 40, 18 AR 40 and 20 CA 40। यहाँ पे भी देखो आपका क्या क्या सेम है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये ओके। और भी एक है एपीएन एनआई 26 27, 26 एपी 58 एंड 26 सॉरी 27 एनआई 50। यहाँ पे 58 58 कांस्टेंट है, ये बदल गया, ये और ये बदल गया, ये और ये। सो आई सजेस्ट यू टू नोट दिस डाउन, तो आपको समझ में आएगा कैसे क्या होता है। इसके बाद हम चलते हैं थर्ड पार्ट, दैट इज कॉल्ड एज द आइसोटोप। तो यहाँ पे आइसोटोप्स में स्पेसिफिकली एक किसी का मास नंबर, एटॉमिक नंबर ये नहीं फिक्स रहेगा, तो उसके लिए थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। वो क्या चेंज हो जाएगा अभी हम देखते हैं आइसोटोप्स। सो नाउ विल गो फॉर आइसोटोप्स। वो हो जाने के बाद हम इसका फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, देखते हैं अभी कितना टाइम लगता है, उसके मुताबिक हम करेंगे। तो इस टॉपिक को ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला बेटा, अभी विदिन सम टाइम आवर सिलेबस ऑल्सो विल गेट फिनिश्ड। तो मैं क्या आपको अपील करता हूँ क्या, ट्राई टू वॉच माई वीडियोज रिपीटेड। मेरा व्यूज़ बढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा खुद का चैनल नहीं है, अपना स्कूल का, तो व्यूज़ बढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ आपको, आपके लिए बोल रहा हूँ। आपने अगर ज़्यादा से ज़्यादा उनको देखा, डाउनलोड करके देखो, ऐसा कुछ नहीं है, उधर ही देखना चाहिए, लेकिन उधर वॉच लेटर में किया तो आप उसको ठीक से 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार देख सकते हैं। क्योंकि मैंने व्यूज चेक किया ना, तो जितने स्टूडेंट हैं, किन किन वीडियो के मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 47 बट स्टिल द व्यूज आर 33 30। तो इससे पता, और दो तीन तो मेरे भी हो जाएंगे, मैंने भी देखा होगा कभी कभार, किसी टीचर ने देखा होगा, है।
मराठी सर कैसे सिखाते हैं देखने के लिए, मतलब ऐसा हर एक का देखते हैं ना अपन का दूसरे का, अरे वो क्या उनका क्या चल रहा है वगैरह, तो उसमें से एक दो पाँच में हटा दी, तो मतलब ऑन एवरेज 20 से 30 बच्चे मेरा वीडियो देख, एक फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई जेड कॉन्सेप्ट, मतलब रिमेनिंग स्टूडेंट व्हाट इज अबाउट देम, और उन लोगों में भी किसी को समझा नहीं तो वो फिर से देखता है, मतलब वो 30 नंबर है वो भी शायद कम आ सकता है. So I appeal to you all. We don't know what is the situation of COVID, Corona, when it will finish. So अगर अपन को काम पे रहना है, जो अपना पटरी है, पटरी से अगर उतरना नहीं है, तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा. ऐसे भी थोड़ा थोड़ा करके देखो, मेरे कांटेक्ट में रहना पड़ेगा, आपको डाउट क्वेरी ये पूछना पड़ेगा. मराठी पर्सन बीच में मराठीवर बोलतो आप दोन डाऊट वगैरे तुम्हाला विचारायला लागतील ना, बरोबर ना. थोडंसं करा, मराठीत सांगतो तर समज, वाईट वाटतं रे आम्हाला एवढं कष्ट करून, म्हणजे काय फार मोठं काम करत नाही, पण एवढे कष्ट करून व्हिडिओ बनवायचा, तो प्रोसेस करायचा, तो अपलोड करायचा, आणि मग तुम्ही बघताना 2-3 मुलं दिसली बघताय, बाकीच्यानी काय, तो विद्येचा अपमान होतो ना रे. तसंच गॉडेस सरस्वती, हाँ, आपका कौन सा भी धर्म हो बेटा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वॉटेवर, उसको भगवान मानो, जो कुछ अल्लाह यीशु जो कुछ मानते हो, गणपति जो कुछ मानते हो आप, सरस्वती, दिस इज द गॉड. तो फॉर द सेक ऑफ गॉड एटलीस्ट वॉच दैट. हमारे लिए मत देखो. मेरे को एग्जाम नहीं देना है, आई विल नॉट बी फेसिंग द एग्जाम, आई विल नॉट बी फेसिंग एनी ट्रबल. द ट्रबल विल बी फेस्ड बाय यू इफ यू विल नॉट सी दिस. ये देखो बेटा, बैठ बैठ के हर साल हम सिखाते हैं, लेकिन बैठ बैठ के पूरा आपके लिए नोट बना, एक भी पॉइंट नहीं छोड़. क्यों बनाते बेटा? आपके लिए बना. मेरे को बोलना नहीं था एक्चुअली, लेकिन क्या होता है अंदर में रहता नहीं, थोड़ा सा बाहर आता है. ठीक है, स्किप अबाउट दैट, वी विल गो फॉर आइसोटोन्स. आई विल सजेस्ट यू, अपन को व्यू आना चाहिए, 100 से ज्यादा व्यू आना चाहिए, मतलब हर एक में 2-2 3-3 बार एक वीडियो देखना चाहिए. मैं आज से ये आपका चैलेंज चालू गया, एवीएम चैलेंज. Okay, AVM challenge is my each and every video must have 100 plus views. This will confirm that you all are watching it repeatedly, whatever are the things or difficulties you are writing them and asking. तो किसी एक ने करना नहीं है, नहीं तो एक तो देखता रहेगा जरूर रोज मराठी सर का वीडियो व्यूज बढ़ाना है, व्यूज बढ़, नहीं 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 ऐसा नहीं. आई वांट द कंबाइंड इफेक्ट. नहीं तो इधर बैठ के मैं व्यूज बढ़ा सकता हूँ ना, इसको बोला उसको बोला, वो नहीं चाहिए अपन को. व्यूज बढ़ने से मेरे को समझ में आएगा कि यू आर इन दैट फेज. दैट इज द थिंग. ओके, जस्ट विल गो फॉर द थर्ड इज आइसोटोन्स. सो आई सजेस्ट यू टू नाइसली राइट दिस आइसोटोन्स. ये थोड़ा सा क्रिटिकल है. इसका डेफिनेशन ऐसा करेंगे, एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई नंबर, एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ऐसा भी बोल सकते, मतलब उसका जो a माइनस जेड, सो दैट विल बी फॉर एग्जाम्पल दैट इज एटम्स हैविंग सेम a माइनस जेड, तो उसको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी बोल सकते. तो उसके लिए क्लोरीन और पोटेशियम 17Cl37, ये भी नोट डाउन कर करके रखो, 17Cl37, एंड पोटेशियम के लिए कितना 19K39. तो यहाँ पे कुछ भी सेम नहीं है, तो सेम क्या है सर? यही तो बात है, यही तो बात है. अगर आपने देखा इन दोनों को, तो देखा इन दोनों को, इफ यू नाइसली ऑब्जर्व देम and if you do the calculation, mathematical calculation, then you will observe that 37 minus 17, 7 minus 7, 0, 3 minus 1, 2, 2, 0. इसमें प्रोटॉन कितना होगा? 17 प्रोटॉन, 70. न्यूट्रॉन 20 होगा. इसमें अलग है, इसमें प्रोटॉन 19 है, तो वो बढ़ गया नंबर, लेकिन न्यूट्रॉन तो 20 से रहेगा.
39 minus 19. 9 minus 0, 3 minus 2, 3 minus 1, 2. So, same number of neutrons, atoms of different elements. हाँ इसमें लिखना मैं भूल गया. Different elements, यहाँ पे उसको ऐड करो. Atoms of different elements having same number of neutrons. Same number of neutrons. उसको बोलते हैं आइसोटोप्स. तो बेटा अभी तक हमने सीखा है आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोप्स. तो थोड़ा इसका रिवाइज करते हैं. तो कल के लेक्चर के लिए हम आगे के लिए जाएंगे मास डिफेक्ट. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फॉर द न्यूक्लियस, और पूरा न्यूक्लियर फिजिक्स इसके ऊपर डिपेंड करता है. सो आई विल सजेस्ट यू, व्हाट आई विल सजेस्ट यू इज जस्ट गो थ्रू द टेक्स्ट बुक. टेक्स्ट बुक को एक बार रीड करो. अगर आपको कुछ दिक्कत है, एनी प्रॉब्लम इज देयर, एनी डाउट इज देयर, just call me, just drop the message on the WhatsApp. I will resolve your case. There is no problem. तो अभी से डाउट सेशन के लिए क्या बोलूँगा, अगर आपको कुछ टॉपिक में कुछ भी समझा नहीं तो आई विल अपील यू, वो पार्ट मेरे को बोल के रखो कि सर ये पार्ट मुझे डाउट सेशन में पढ़ा. बहुत सारे बच्चे ऐसा भी करते हैं, वो पार्ट का पिक मेरे को व्हाट्सएप पे सेंड करते हैं. अभी हमने डाउट सेशन बहुत इम्प्रूव किया है. मतलब डाउट सेशन में मैं बैठे रहता हूँ, सिखाता नहीं, मतलब ऐसा बोर्ड लेके सिखाता नहीं. मैं बैठता हूँ लैपटॉप के सामने. क्योंकि बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि डाउट सेशन में कोई आता नहीं है. हमारे बंदे हैं 5-6 बंदे हैं, वही आते हैं, हम डिस्कस करते हैं. आई एम मिसिंग ऑल ऑफ यू. तो मेरे को लग रहा है कि सब आने के बाद हो जाएगा. तो आपको कुछ भी क्वेरी हो तो 2 मिनट में उधर लैपटॉप पे दिखाएंगे, बाद में चले जाओ. मैं ऐसा नहीं बोलता पूरे रुके रहो. तो मैं भी अभी परेशान हो गया आपको बोलते आओ आओ आओ. ठीक है, यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू. तो इसके बाद तो अभी हमने क्या सीखा है. तो इम्पोर्टेंट थिंग आपको ध्यान में रखना है. तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट थिंग टू नोट डाउन, आर इज इक्वल टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3, v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब. तो ये v कितना मिल जाएगा, 4/3 पाई आर नॉट क्यूब इंटू ए, बिकॉज आर नॉट इंटू ए टू द पावर 1/3 उसका हो जाएगा. तो ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ये भी प्रोपोर्शनल हो जाएगा, लेकिन न्यूक्लियर डेंसिटी ये फिक्स्ड हो जाएगा. ये 3 चीज आपको ध्यान में रखना है. पहला चीज मैंने कौन सा बताया आपको, द फर्स्ट थिंग दैट, ये फिर से मैं आपका रिवीजन ले रहा हूँ, आर इज प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर 1/3, वेरी इंपॉर्टेंट. v is proportional to a, directly proportional, and rho independent. ओके, तो ये बात हुई अब आपकी बेसिक्स ऑफ द न्यूक्लियर फिजिक्स. उसके बाद आइसोटोप्स, एक बार फिर से आपका रिवीजन. Z आइसोटोप्स, Z से X से A डिफरेंट है ना. आइसोबार्स, आइसोबार्स के लिए क्या, Z डिफरेंट, X ऑफ कोर्स डिफरेंट, A से. आइसोटोन्स, Z डिफरेंट, X डिफरेंट, A भी डिफरेंट. तो सेम क्या हो जाएगा, A माइनस Z से. तो इनमें क्या सेम है वो भी अगर आपने ध्यान में रखा, इन आउट ऑफ दैट फॉर एवरीथिंग, यहाँ पे Z सेम, X सेम, so atoms of same element having same atom. यहाँ पे atoms of different element having same mass. यहाँ में atoms of different element having same neutron, उनको बोलेंगे आइसोटोप. So this is the way in which the topic can be studied. यहाँ से आगे हम जाएंगे very important thing that is called as the mass defect. तो डिफेक्ट मतलब क्या, कुछ डिफेक्ट होता है क्या, ऐसा नहीं कुछ.
तो डिफेक्ट का मतलब है जो आपका न्यूक्लियस है उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उनका मास, खुद का मास, और आपने जो न्यूक्लियर मास निकाला है उसका अगर कैलकुलेशन किया, सो प्रैक्टिकली कैलकुलेटेड इंडिविजुअल मास एंड theoretically calculated individual mass and practically calculated actual mass, they does not in relevance, so उसको बोलते हैं डिफेक्ट इन द मास, उसको बोलते हैं मास डिफेक्ट। तो आपने अगर न्यूक्लियस का खुद का वेट निकाला एक्सपेरिमेंट कर, जो मास बोलते हैं ना, वेट मतलब मास, न्यूक्लियर मास एक्चुअल, ऐसा नहीं वो थियोरेटिकल कैलकुलेशन करके वो ये इधर उधर से लगा के, लाइक नॉट लाइक दैट, एक्चुअली बाय डूइंग द एक्सपेरिमेंट व्हाटएवर इज द मास यू आर कैलकुलेटिंग, सपोज उसको मैं बोला वो मास, न्यूक्लियस का मास। नाउ व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यूक्लियस? न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो कितने न्यूट्रॉन्स है, कितने प्रोटॉन्स है? तो प्रोटॉन का, हर एक प्रोटॉन का और हर एक न्यूट्रॉन का, दे आर हैविंग अ स्पेसिफिक मास, खुद का x एंड y से। तो कितने प्रोटॉन है? 4 प्रोटॉन है तो 4x, 5 न्यूट्रॉन है तो 5y, ये पूरा हो जाए। तो 4x प्लस 5y, तो ये जो x और y का कैलकुलेशन वगैरह करके, इफ आई विल कैलकुलेट थियोरेटिकली, then there is a difference in those two values, actually that should not be there, है ना, ना उतना होना चाहिए। लेकिन क्या होता है, एक आपको एग्जांपल देता हूँ, बाद में भी रुक जाए, मेरे को भी मालूम है टाइम बहुत है। लड्डू बनाते हैं, कौन सा लड्डू? रेगुलर, रेगुलर लड्डू नहीं बोल, हाँ, मूंगफली का लड्डू। मूंगफली का लड्डू खाए, शेंगदाना ऐसा लाडू। कैसे बनाते हैं? मूंगफली को भून लेते हैं, गुड़ लेते हैं, गुड़ को भी भून लेते हैं और उनको मिक्स करके बाद में बनाते, बराबर है। तो अगर मैंने मूंगफली लिया, छिलका वगैरह निकाल के उसका वेट किया, यह है 10 ग्राम, और गुड़ का भूनने के बाद वो आया 10 ग्राम, और उसका एक लड्डू बना, तो उसका कितना होना चाहिए? 20 ग्राम होना चाहिए, 10 और 10 20 होना चाहिए। दिस इज द थिंग, दिस इज द कैलकुलेशन, ये प्रैक्टिकली मैंने किया। लेकिन मेरे को ऐसा समझ में आया कि मूंगफली का 10 ग्राम फॉर द गुड, फॉर द जैगरिन, that is a 10 gram, but jaggery plus groundnut, making the ball, that mass was not the same at the addition of those mass. So there was a difference. So that difference here referred as the mass defect in the context of the nuclear physics. So what is that mass defect? That we will study in the next lecture. Till that, stay home, stay safe, and stay tuned with physics. Beta, come for the doubt session. Read each and every thing in the NCERT. I am with you for any doubt and query. Please feel free to ask me. Thank you and so on. Bye bye. Have a good day.